All the student, today we are discuss your important topic drug and cosmetic act and rule. So firstly we are discuss the why we need for the drug and cosmetic act and rules. So first one is the British misrule is providing is a poor health system to the India citizens. So observation made by the drug inquiry committee. So in Indian Medical Association. So next one is the report in the India Medical Gazette during the period of 1920 to 1930. So 1940 is the Drug and Cosmetic Act is under the publisher. So during in 1945 rule under the act so extended to whole of the India. So main objective इसके क्या थे? इनको फर्स्टली टू रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू बाय लाइसेंस. So next one is the manufacturing, distributor and sale of drug and cosmetic by the qualified person only. So to prevent the standard in the drug and pre-assembling for the maintaining high standard of medical treatment. So to regulate the manufacturing and sale of like a other drug like a Ayurvedic, Siddha and Unani drug. So next one is the to establish drug technical board advisor like a DTAB, drug technical advisor board and drug consultative committee, so DCC for the allopathic and drug and cosmetic. So these are the main objective of drug and cosmetic act. So next one is the what is the definition of drug? Like a drug is any medicine used for the internal or external use for human being or animals. So and the all the substance is needed to the use for like a diagnosed treatment, mitigations or prevention of any disease or disorder in the human or as well as the animal. So including in preparation so applied for the repeating a like a mosquito substance is we can use for the treat. मेनली हमारा फोकस क्या है? ड्रग क्या है? ऑल मेडिसिन है जो फॉर हम क्या है? फर्स्टली ड्रग क्या है? ड्रग इज एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस वी कैन यूज फॉर द ट्रीटमेंट. फर्स्टली वी कैन यूज फॉर द डायग्नोस्ड ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन द ह्यूमन बीइंग and animal. So next one is the cosmetic. So what is the main definition of cosmetic? Cosmetic क्या है? Any article intended to be a rubbing, polishing, shining or spraying on the or otherwise applied to the human body or any part of for the like a cleaning, ब्यूटिंग, प्रमोशनिंग या प्रमोटिंग जो अट्रैक्टिवनेस. सो वो वाले सब्सटेंस जो आप अपनी स्किन पे एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो रबिंग करने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए या ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए या प्रमोटिंग करने के लिए किसको? अट्रैक्टिवनेस को. तो वो वाले सब्सटेंस लाइक स्प्रे हो सकती है, उसमें हर्बल क्रीम हो सकती है, मॉइस्चरिंग क्रीम हो सकती है. सो दीज आर टाइप ऑफ मैनी सब्सटेंस so under in the use for the drug and cosmetic. So उसको आप क्या कर सकते हो? needly for use as the compound of a cosmetic. So next one is the misbrand drug. So what is the misbrand drug? So it is a so colored, coated or powder or polishing that the damage is the considered. mainly क्या है? वो वाली ड्रग जो बहुत ज़्यादा कलर्ड हो गए, जब बहुत ज़्यादा कोटेड की होगी किसके साथ? लाइक शुगर के साथ ज़्यादा कोटेड की होगी, उसमें ज़्यादा पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसमें पॉलिशिंग ज़्यादा होगी. तो मेनली क्या कर सकते हैं? दी जो ड्रग जो हैं डैट कैन बी डैमेज टू यूर बॉडी एंड हार्म टू यूर बॉडी पार्ट. लाइक ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, आपके सेल को डैमेज कर सकती है. तो यू शुड बी ए केयरफुल. सो नेक्स्ट वन दी कौन सी ड्रग इफ़ इट इज़ ए नॉट लेबल्ड. कैसे आप उसको पहचान पाओगे? इट इज़ ए नॉट लेबल, उसका कोई लेबल नहीं होगा और वो कोई भी डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं की जाएगी. सो नेक्स्ट वन इट इज़ ए लेबल और कंटेनर और एनी
ड्रग जो होगी इसका बैरियर्स और एनी स्टेटमेंट जो होगी डिज़ाइन की होगी और डिवाइस की होगी, आप उसको ईज़िली पहचान सकते हो कंपेयर करके रियल ड्रग के साथ। तो वो मेनली क्या होगा, उसका जो लेबल होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, कंटेनर उसका जो है वो मॉडिफाई किया होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ दी अल्टरनेटिव ड्रग। So it is a consist in the whole or in the part of any purated or decomposition substance. So it has been is a prepared, packed or storage under the इंसेंटरली कंडीशन। सो वो मेन क्या है कि उसकी जो पैकेजिंग करने का तरीका होगा, स्टोरेज होगा, जो अंडर कंडीशन रखा होगा वो सही मेंटेन से और सही स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके नहीं रखा होगा। तो वेयर बाय इट मे बी है बी कंटेमिनेटेड और वेयर बाय इट मे बी है बिन इंजर्ड टू दी हेल्थ। तो वो क्या कर सकती हैं, मेनली आपकी बॉडी को इंजर कर सकती है, हार्म कर सकती है, बॉडी ऑर्गन के ऊपर अपना साइड इफेक्ट शो कर सकती है। सो नेक्स्ट वन इज दी सीरियसली ड्रग। तो मेनली क्या होगा, नेक्स्ट वन इज दी सो इट इज़ दी इम्पोर्टेंट अंडर ए नेम सो विच इज बिलोंग टू दी अनदर ड्रग। सो इट इज़ दी लाइक के जो सब्सटेंस इसमें यूज़ किया होगा वो रिसेंबलिंग अनदर ड्रग से लिया होगा इन दी ए मैनर लाइक की टू उसको कॉपी करने के लिए, लाइक आप उसका लेबल कॉपी किया होगा, कंटेनर किया होगा उसका, एज वेल एज नेम ऑफ अदर ड्रग। तो अदर ड्रग के नेम भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। So it is has been a substance of a whole in the part by the another drug or substance. So मैन्युफैक्चरिंग का इनमें मिसब्रांड ड्रग में क्या होगा, सो इट इज़ ए रिलेशन टू एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक। सो इट इज़ इंक्लूडिंग एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर द मेकिंग, अल्टरनेटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग अप ऑफ द अदरवाइज इज ए ट्रीटमेंट और adoptions or drug or cosmetic with a view to the its sale, distribution, but does not including the compounding or dispensing of any drug. So these are the main process of the manufacturing. So next one is the patent or properties of medicine. So like a drug which is a resembling or prescribed by the doctors in form the ready for the internally or externally administration of a human being or otherwise like animals. So which is a node including in the addition of Indian pharmacopoeia. So for the time to beginning of any other pharmacopoeia authorized in this is beneficial by the central government. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल। तो मेनली क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्ट एंड रूल कौन से हैं, लाइक एडवाइजरी, सो ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड लाइक DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी लाइक DCC और एनालिटिकल कमेटी लाइक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन है और ड्रग एंड रूल के लिए भी कौन सी ड्रग को पास करेंगी और कौन सी एडवाइज़र बोर्ड उसको एनालाइज करेगी और कौन सी उसको एग्जीक्यूटिव करेगी। सो दीज आर डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट। फर्स्ट वन इज ए एडवाइज़र, अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज द एडवाइज़र बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइज़र बोर्ड सो लाइक ए DTAB। सो नेक्स्ट वन इज ए ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी लाइक ए DCC। सो ड्रग को एनालाइज कौन करेगा, सेंटर ड्रग लेबोरेटरी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में CDL याद रख सकते हो, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। नेक्स्ट वन इज दिस ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट। तो हर एक स्टेट की एक ड्रग को कंट्रोल करने वाली एक हर एक स्टेट की लेबोरेटरी होगी जो गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश की जाएगी लाइक ए गवर्नमेंट एनालिटिकल। और एग्जीक्यूटिव कौन होंगे इसको, जिनके पास लाइसेंस अथॉरिटी होगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी और ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, तो वो इसके एग्जीक्यूटिव होंगे। अगेन आई विल रिपीट,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल बनाए जाएंगे ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और सेल करने के लिए। फर्स्टली इसमें एक अथॉरिटी आएगी, कौन सी, ड्रग टेक्निकल एडवाइज़र बोर्ड। एंड नेक्स्ट वन है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। सो एनालाइट कौन करेगा ड्रग के स्टैंडर्ड को एनालाइज कौन करेगा, ड्रग की क्वालिटी को एनालाइज कौन करेगा, ड्रग की इम्प्योरिटी को कौन एनालाइज करेगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी इन स्टेट, हर स्टेट की एक ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालाइजर। सो एग्जीक्यूटिव उनको कौन कर सकता है, ड्रग को, लाइसेंस अथॉरिटी होगी उनके पास, कंट्रोलर अथॉरिटी होगी और ड्रग इंस्पेक्टर। सो नेक्स्ट वन इज दी ड्रग टेक्निकल एडवाइज़र बोर्ड में एक्स ऑफिसर कौन से होंगे, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का होगा चेयरमैन, ड्रग कंट्रोलर होगा इंडिया का, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का होगा, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूट से होगा। और नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ या डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से होगा। और प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये आले एक्स ऑफिसर इनमें ड्रग टेक्निकल एडवाइज़र बोर्ड में काम करेंगे। सो नॉमिनेटेड कौन होंगे इसके, 2 पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ए ड्रग कंट्रोलर इन द स्टेट। तो नॉमिनेट किए जाएंगे 2 पर्सन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट से। सो 1 पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और 2 पर्सन होल्डिंग किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे ऑफ द गवर्नमेंट एनालाइज करने के लिए अंडर दिस एक्ट, 2 बाय नॉमिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इलेक्टेड मेंबर कौन से होंगे, 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम द अमंग टीचर इन द लाइक ए फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मा कोगनोसी ऑफ द स्टाफ ऑफ इंडिया इन ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज एफिलेटेड। So 1 person be elected by the executive committee of the medical council of India from the among teacher like in a medicinal or therapeutic on the staff of Indian university like a or as well as college affiliated. So 1 pharmacologist to be elected by the government body of the Indian Council of Medical Researcher. सो 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय किया जाएगा सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएटर द्वारा, और 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड किया जाएगा बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएटर। सो दीज आर द मेंबर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट।